Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. शुड बिकम लॉजिकल. मतलब एक ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड के सामने एक बंदा खड़ा हुआ है. जनरली ये पिक्चर काफी कॉमन होता है. तो लोग लिखते हैं कि कैप्टन रमेश वाज दिस या योगेश या राम एंड ऑल दैट. लॉजिकल रीजनिंग में उसी में फर्स्ट सेंटेंस में ही खत्म हो जाता है. ग्रेवयार्ड में कैप्टन रमेश कैसे हो सकता है? yes. अगर वो ग्रेवयार्ड है तो थॉमस होगा, जॉन होगा. कॉन्फ्रेंस में जब मैं गया, ये क्वेश्चन मुझे पूछा कि एंड इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट. लास्ट अटेम्प्ट. दे न्यू दैट. They asked me the same question. If you don't get recommended, what will you do? I just had a smile. सारे conference में everyone was sitting there and just said very firmly, कि sir, I don't plan for failures. I plan for success. That's it. कौन सी चीजें हम डेली रूटीन में करें ताकि हमारा माइंडसेट इंप्रूव हो सके या बेटर माइंडसेट के साथ हम काम कर सकें. Okay. First of all, don't set your mind. Okay. Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and I'm back with another episode with the Army veteran जहाँ पे हमने SSB के काफ़ी डाउट्स को क्लियर किया है. His name is Major Sidram sir. He is here to share his journey as well as उन्होंने काफ़ी सारे अपने experiences के through SSB के doubts clear करे हैं. So without any further delay, let's call sir to our platform Defense Roger. I also want to talk about SSB because sir SSB के regarding बहुत सारे लोग guidance लेना चाहते हैं. Sir मिसलीडिंग कुछ भी मिलता है तो दे जस्ट ट्राई टू एक्यूमुलेट ऑल द थिंग्स. सर उनको राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती, इसलिए द सीरीज हैज बीन स्टार्टेड विद द मिलिट्री वेटरन्स बाय टेकिंग देयर ओपिनियंस एंड देयर एक्सपीरियंसेस. सर आई वांट टू नो सर, देयर आर टाइम्स एक एस्पिरेंट है जो रिकमेंड हो गया एंड द वेरी सेकंड अटेम्प्ट द सेम पर्सन वो सर वो स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है. सो सर आई वांट टू, इज इट एनी लक फैक्टर दैट रियली इंपैक्ट्स योर परफॉर्मेंस? Okay, a very good question. It happens. I have seen this. I have seen one of my friend got recommended and next attempt में even in the next same center different board, मतलब एक इलाहाबाद सेंटर में he had gone there. He got recommended, I guess 19 बोर्ड था शायद, वहां से recommend हो गया. एंड दूसरा वहीं से उसने दूसरी एक एंट्री थी, उसने रिपोर्ट किया 17 बोर्ड में सेम सेंटर में रहते हुए and he's got screen out. See, because we have to understand, first of all, let me make it very clear. SSB is a test of your perception. मतलब आपका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड इज नॉट अबाउट
एटीट्यूड को बहुत लोग गलत समझते हैं कि एरोगेंस को एटीट्यूड समझते हैं, इसकी बहुत बहुत एटीट्यूड है वो है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एटीट्यूड इज अ रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इट्स अ रिस्पॉन्स, आप कैसे रिएक्ट करते हो पर्टिकुलर सिचुएशन। सो इसका टेस्ट है वो, ये कब आता है, आपका आपके परसेप्शन से आता है, आप किस चीज को कैसे परसीव करते हैं। इसलिए सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट है। वहां पे आपको कोई नहीं पूछ रहा है कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है, एंड रशिया एंड यूक्रेन के वॉर में कितने मिसाइल्स फायर हुए थे। इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर जनरल नॉलेज। आईएस, आयो होता है, आयो आस्क यू द करंट अफेयर्स, बट करंट अफेयर्स उसका उसका मकसद ये नहीं रहता है कि टू टेस्ट योर नॉलेज, जस्ट जनरल अवेयरनेस होता है, उसके थ्रू भी वो ओएल क्यूज को ही असेस करता है। ओके, बिकॉज सी, आप एसएसबी में कब जाते हो, व्हेन यू क्लियर द एनडीए और सीडीएस और जो भी आपकी टेक्निकल एंट्रीज होती है, टीएस हो, यूजीसी हो, या आपकी एनसीसी एंट्री हो, जिसमें आपको मिनिमम आपने बी सर्टिफिकेट पास कर लिया है, सी सर्टिफिकेट पास कर लिया है बी ग्रेड से, 50% है, या आपके कुछ 75% होंगे टीएस वगैरह के लिए। आपका जो नॉलेज है, आपको एक पैरामीटर उन्होंने सेट किया है। सीडीएस में अगर आपने जनरल नॉलेज का पेपर, या इंडिया में भी अपने जनरल नॉलेज का पेपर क्लियर करके आप एसएसबी जा रहे हो, तो दोबारा वो जनरल नॉलेज की टेस्ट नहीं लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इट्स अ टेस्ट ऑफ अ परसेप्शन, प्योर परसेप्शन। इसलिए जो फर्स्ट टेस्ट होती है स्क्रीनिंग में, वाई आपने जो कहा कि स्क्रीन आउट क्यों हो जाता है, क्योंकि स्क्रीनिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट वही है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, पीडीटी। ओके, तो उसमें आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है एंड आपको बोला जाता है कि एक स्टोरी बना उसके ऊपर, एंड देन यू डिस्क्राइब द स्टोरी। तो अगर उसी में वो आउट हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उसका जो परसेप्शन है वो लिमिटेड है या बायस्ड है, या उस परसेप्शन में वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही उनको, जो 15 क्वालिटीज है। ओके, ये 3 रीजन हो सकते हैं उनके। सो हमेशा आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अगर, इसलिए एक ही सेंटर से, मैं क्लियरली रियल स्टोरी बता रहा हूँ, एक ही सेंटर में दूसरे बोर्ड में गया वो बंदा, एंड वो स्क्रीन आउट हो गया, जो रेकमेंड हो गया था 19 बोर्ड से दूसरे बोर्ड पर वो स्क्रीन आउट हो गया, क्योंकि परसेप्शन उसका लिमिटेड हो गया होगा उस पिक्चर की वजह से, या उसके उस स्टोरी में वो क्वालिटी दिखी नहीं होगी। ओके, सो इट्स नॉट अ लक फैक्टर। लक को मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। मतलब कभी कभी सिचुएशंस को हम समझ नहीं पाते हैं कि यार ये बंदा कैसे रेकमेंड हो गया, यार इसके इसके ये तो, इसके पिताजी तो खेती बाड़ी करते हैं, गांव से आता है, इसको तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती ढंग से। ओके, एंड ये तो अंग्रेजी मीडियम में भी नहीं सीखा है, इसको तो कुछ पता भी नहीं था यूक्रेन वॉर के बारे में, इसको कुछ आता भी नहीं था, ये कैसे रेकमेंड हो गया। ओके, ये और हमको लगता है कि यार इसका लक अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं है। तो और कभी कभी ये लगता है कि यार कोई ब्रिगेडियर का लड़का है, एपीएस में पढ़ा हुआ है ना, एंड ये मैंने देखा है, मतलब आई एम गिविंग अ वेरी रियल एग्जांपल्स, मैंने आंखों से देखा है कि मतलब सातारा करके गांव था, उस गांव में खेती बाड़ी करते थे, उसका उसका बेटा था, ही गॉट रिकमेंडेड, एंड दूसरा ब्रिगेडियर का लड़का था, एपीएस वगैरह में पढ़ के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के, इज गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। ओके, एंड फ्लुएंट इंग्लिश, मतलब बिल्कुल ऑफ कोर्स बचपन से घर में भी इंग्लिश ही सारी बात करते हैं। सो एसएसबी इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश आल्सो, बिकॉज इट्स अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। बट रात के समय में, जैसे मैंने आपको इंसिडेंट बताया कश्मीर में, जब गोले गिर रहे थे देने पाए, तो अंग्रेजी काम में नहीं आती है। यस सर। बाहर, सो जो बाहर निकला, जो हमने शूटिंग की, मतलब उसको रिस्पॉन्ड किया, तो उसके लिए वो करे चाहिए था, इनिशिएटिव चाहिए था, तो ये सारी चीजें थी, कोऑपरेशन भी चाहिए था। तो क्वालिटीज ये सारी है। अगर मैं कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाता, तो मैं उतना अच्छा फायर नहीं कर पाता। ठीक है, सो हाँ, बट ऑफ कोर्स इट्स अ preferable language. I have seen people who speaks in Hindi and English both and got recommended. Okay, क्योंकि it's a trainable area. आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है, हम आपको सिखा देंगे, लेकिन आपके पास अगर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो कहाँ से सिखाएंगे। आपके पास लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, वो मैं नहीं सिखा सकता आपको कि यू शुड बिकम लॉजिकल, यू शुड बिकम लॉजिकल। मतलब एक ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड के सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, जनरली ये पिक्चर काफी कॉमन होता है, तो लोग लिखते हैं कि कैप्टन रमेश वाज दिस या योगेश या राम एंड ऑल देम। लॉजिकल रीजनिंग में उसी में फर्स्ट सेंटेंस में ही खत्म हो जाता है। ग्रेवयार्ड में कैप्टन रमेश कैसे हो सकता है? yes. अगर वो ग्रेवयार्ड है तो थॉमस होगा, जॉन होगा, yes, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग उसमें आ जाती है। तो उसी में वो जब साइकोलॉजिस्ट पढ़ेगा कि यार इसका तो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, है ना, तो उसको हम सिखा नहीं सकते।
भले ही उसके अंग्रेजी हम ठीक कर लें, ग्रामर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी ऑफिसर्स इनका दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश, मतलब ओके होता है, बट दैट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट कैन बी ट्रेन। मेरी भी अच्छी अंग्रेजी नहीं है, एंड आई एम फ्रॉम मराठी मीडियम, सो but I did what I supposed to do. Okay. Also, I want to know, sir, there are times candidates screen out हो जाते हैं, conference out हो जाते हैं, because sir selection rate बहुत कम है, पर उस situation पे सर डील करना नहीं आता है कि उस situation में react कैसे करें और अपने shortcomings पे improve कैसे करें, because there's a sir, fear of failure is always there, and when you fail you are out of that situation and you don't know how to react. So sir, how to deal with such? Yes, yes. Yeah, very good question. It must be a very common situations for many aspirants. मैंने 6 बार फेस किया है इस सिचुएशन को, because I faced 7 times, and like again I said initially में मैंने जैसे एनर्जी प्रोबेशन के बारे में बताया था कि टोटल विलिंगनेस चाहिए एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट। सो अगर आपका अनवेवरिंग कमिटमेंट है फिर तो आपको डिप्रेस आप हो ही नहीं सकते, आप कितनी बार भी फेल हो जाओ, मतलब वेदर इट इज एसएसबी और वेदर इट इज एनर्जी प्रोबेशन और वेदर इट इज एनी एग्जाम इन योर लाइफ, भले वो सीरियस भी हो सकती है और एनीथिंग। तो अगर आप कमिटेड हो ना कि जब तक मैं क्लियर नहीं हो पाता मैं छोड़ूंगा ना इस चीज को, आई एम कमिटेड, सो फिर तो सक्सेस फेलियर का कोई मतलब ही नहीं। आई एम कमिटेड, मैं इसी चीज के लिए बना हूं, मुझे यही चीज करनी है। हाँ, नाउ सेकंड फैक्टर आ जाता है कि लेकिन यार मैं अगर ऐसे करता रहूंगा देयर इज अ एज लिमिट, मैं कंटिन्यूस तो नहीं कर पाऊंगा कि मैं मतलब चलो मैं जा रहा हूँ फेल होता आ रहा हूँ एंड आई एम हैप्पी विद इट। तो उसमें एक एनालिसिस होती है कि कभी कभी हमको खुद को पता चल जाता है कि कुछ बहुत ब्लंडर हमने कुछ चीज ऐसे बोल दी है पीपीटीटी में या इंटरव्यूज में जिसकी वजह से नहीं हुआ होगा, या साइकोलॉजी में हमने कुछ ऐसी स्टोरीज ऐसी लिखी थी कि यार जो बायस थी, थोड़ा अनबायस थी और काफी मतलब कुछ भी लिखा था मैंने, ये कभी कभी 70-80% हमको पता चल जाता है। बट यस आई कैन अंडरस्टैंड देर आर एसएसबीज ऐसे भी हो सकते हैं कि हमने यार बहुत अच्छी स्टोरीज लिखी थी, मैंने पूरा अपना 100% दिया था, स्टिल आई कुड नॉट मेक इट, ये भी सिचुएशन आ सकती है। अगर ऐसा है तो यू डोंट हैव टू वरी मच, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बोलना आसान है बट इसको समझना बहुत मुश्किल है कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरा नहीं हो पाया। तो मेरा एक ही कहना है कि अगर आप कमिटेड हो, आपके पास और अटेम्प्ट्स बचे हैं, ठीक है, मतलब मैं इतना कमिटेड था कि मैं लॉ में मैंने एडमिशन लिया था क्योंकि लॉ को 27 ईयर्स तक हो जाता है, फिर टीए हो जाता है, फिर उसके बाद मतलब वॉट एवर इज द वे, मतलब लॉ मैंने कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले मैं रेकमेंड हो गया, बट आई जस्ट कुड फाइंड आउट कि मुझे बस यही करना है यार जिंदगी में और कुछ नहीं करना था। तो जितने भी अगर मतलब ये कमिटमेंट नहीं है आपका कि आपसे 3 बार आपने एसएसबी दिया आपने एंड उसके बाद फिर आपके पास और 2 अटेम्प्ट बचे थे लेकिन आपने छोड़ दिया, दैट इज नॉट अ कमिटमेंट। मतलब मैं कंप्लीटली लास्ट अटेम्प्ट मतलब जैसे विद इन जस्ट 28 डेज बचे थे मेरे एंड आई कुड क्लियर द अटेम्प्ट। सो मतलब काफी फिल्मी स्टोरी लगती है कि एकदम से लास्ट अटेम्प्ट में हो गया, बट इट हैपेंड, ये हो सकता है। सो अगर आप कमिटेड हो तो यू शुड नॉट वरी अबाउट सक्सेस एंड फेलियर्स, इट डजंट मैटर टू यू। ओके सर, जब स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात करी जाती है तो जीडी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड सर वहां पे जनरली एक टर्म सुनने को मिलती है फिश मार्केट। सर यहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सर अगर वॉइस रेज करते हैं तो आप डोमिनेटिंग लगता है कि आप डोमिनेट कर रहे हो ग्रुप को, और अगर आप वॉइस को लो रखते हो तो सर ऐसा लगता है कि आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट बीइंग आइडेंटिफाइड इन द ग्रुप। सो सर उस सिचुएशन को कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन के रिस्पेक्ट? Right. So now there are 2 parts of these questions. One is fish market and voice modulation. So if it's a fish market, then you should not become a part of a fish market. Do you want to become a part of a fish market? No. If you're a tiger, then why you want to become a fish? Okay. Now second is the voice modulation. You don't think about that कि मेरा voice modulation ज्यादा है कम है। सेंसिबली मतलब एज अ कॉमन सेंस से आपको पता चल जाता है कि मुझे कितना तेज आवाज रखनी है, क्या मेरी आवाज पूरे ग्रुप को और सामने जो 3 असेसर्स बैठे हैं उनको पता चल रही है या नहीं चल रही है। यू कैन सेंस दैट, इट्स जस्ट अ सेंस, हियरिंग सेंस है आपका।
जब आप बोल रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि ये ज्यादा आवाज हो रही है या ये बहुत ही कम आवाज हो रही है, आप उतना सेंस कर सकते हैं। फिर वो कितना ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वो मॉड्यूलेशन कैसे करना, कि आप उस टेक्निकलिटी में जाओगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। सो यू जस्ट बी, ज्यादा सोचना मत उसके ऊपर, सामने वाले को सुनाई दे रहा है उतना उस लैंग्वेज में बोल देना। तो फिश मार्केट का ऐसा होता है कि like I said, if it's a fish market, don't become part of it. Yes. Okay. It's a sensible not to become a fish, because to become a part of a fish market, you have to be fish. Okay. लेकिन पीपीटीटी में बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट होता है टेस्ट का, जो होता है 1 minute स्टोरी नरेशन, Yes. विच इज इक्वल टू एवरीवन। इज इट करेक्ट ना? एक मिनट का आपको टाइम मिलता है। Yes. जब आपको असेसर बोलता है कि आपको 4 मिनट दी गए थे आपकी पिक्चर के ऊपर स्टोरी बनाने के लिए, if you could not able to complete the story, if you're not able to conclude the story, now it will you will be given 1 minute time. अगर आपने कंक्लूड भी नहीं किया है लिखते वक्त, यू कैन कंक्लूड इन योर माइंड, एंड आप 1 मिनट में उस स्टोरी को सबको, पूरे ग्रुप को आप नरेट कर सकते हो। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। Yes. नाउ यू आर स्टैंडिंग अप, आपका चेस्ट नंबर सामने है, तीनों असेसर्स बैठे हुए हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, आईओ एंड साइकोलॉजिस्ट। पूरा ग्रुप आपको सुन रहा है। अभी आप फिश मार्केट का भी हिस्सा नहीं है। अब जो स्टोरी आप बता रहे हो, हर एक वर्ड को तीनों के तीनों असेसर ध्यान से सुन रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैड गॉन टू वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जो एसएसबी के थे, मेरा कोर्समेट भी है उस पार्ट ऑफ द एसएसबी असेसिंग टेस्ट। व्हाट दे सेड कि जो स्क्रीनिंग होती है उसमें तीनों असेसर्स बैठते हैं, अगर तीनों में से किसी एक ने भी रेकमेंड नहीं किया तो वो स्क्रीनिंग में रेकमेंड नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई स्क्रीन आउट हो रहा है, इट मींस दैट कि तीनों ने उसको रेकमेंड नहीं किया। अगर किसी एक ने भी किया होगा, कि आयो ने किया होगा कि यस रेकमेंड, ही इज रेकमेंड, बाकी दोनों को उसको टेस्ट करना पड़ता है। क्योंकि हम वो जो 1 मिनट होता है ना, उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको ज्यादा अंडररेटेड रखा गया है। लोग उसको बहुत कैजुअल लेते हैं कि चलो ठीक है, बता दिया, स्टोरी यही लिखा था मैंने। एंड वी आर मोर फोकस ऑन द ग्रुप डिस्कशन में, बोलना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, मैं कंक्लूड करूंगा स्टोरी, मैं कंक्लूड करूंगा। जो चीजें आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आप कैसे इमेजिन करोगे? पूरा भद्दा सा ग्रुप आ गया, बिल्कुल खचर बचर चल रही है, तो आप ना तो बोल पाएंगे, और फिर आपको तेज आवाज करनी पड़ेगी, चिल्लाओगे आप, कुछ भी बकवास करोगे, फिर आपको अगर स्टोरी कंक्लूड करने को नहीं मिली, फिर आप मोरल डाउन करोगे। इससे अच्छा आपको 1 मिनट मिल रहा है। मैं जितनी बार भी स्क्रीनिंग हुआ, मैं स्क्रीन आउट भी हुआ हूँ, आउट ऑफ 6 टाइम्स मैं एक बार स्क्रीन आउट भी हुआ हूँ, लेकिन मैं जितनी बार भी स्क्रीनिंग हुआ हूँ 6 टाइम्स में, उसमें मैंने जो 1 मिनट मेरे को मिलता था, उस वक्त आप बहुत ही मतलब कामली खड़े हो जाना, कॉन्फिडेंटली आप खड़े हो जाना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि यू आर कॉन्फिडेंट, एंड आप पूरा 1 मिनट में आप स्टोरी बता देना, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, जिसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी वो इमीडिएटली टिक कर देता है। एक बंदा है जो नदी में डूब रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो किसी ने उसको कोई लाइफ जैकेट, लाइफ गार्ड को बुलाया, किसी ने इमरजेंसी को बुलाया, किसी ने उसको रस्सी फेंकी, किसी ने बम्बू डाला, किसी ने लिख दिया उसको कि Ramesh was standing on the bridge and he jumped into the water and saved the guy. बस खत्म है, बाहर आके उसको उसके घर वालों को दे दिया उसने, सिंपल। तो जंप इनटू द वाटर मींस व्हाट? इट्स अ करेज। वो सीधा कूद गया ना, ओके। सो सिंपल है, वो इमीडिएटली करेज, वो तीनों की तीनों असेसर टिक करते हैं। आपको बस सिंपली बोल देना है, फिर उसके बाद आप फिश मार्केट का हिस्सा बनो ना बनो, डजंट मैटर। बट इट डजंट मीन कि आपको साइलेंस मिल गया है, आपको एक मौका मिल गया, आपको एक विंडो मिल गया है कि जहां पे आप अपना पॉइंट रख सकते हो, देन यू शुड डू इट, देन आप बोल देना। सर जनरली इस बारे में तो डिस्कशन होता है कि इंग्लिश इज एसएसपी, बट इज हिंदी अलाउड इन एसएसपी सर? अगर कोई एस्पिरेंट इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं है, और क्या हिंदी में एसएसपी दे सकते हैं? हाँ, यस, सी, तो व्हेन यू गो देयर, द असेसर्स, आई मीन द मोड ऑफ लैंग्वेज इज इंग्लिश ऑफ कोर्स इन एसएसबी, ऑल द सेंटर्स। जितने भी असेसर्स होते हैं या जो भी कंडक्टिंग ऑफिसर्स होते हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं, दे विल गिव यू ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश, ओके। जितने भी टेस्ट होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, बट हिंदी अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है। व्हाट दे से दैट कि इवन इन इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपको बोलता है कि इंग्लिश इज प्रेफरेबली, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, बट इन केस इफ यू डोंट फाइंड सर्टन वर्ड्स, क्योंकि
कैसे इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, किसी की भी मदर टंग होती नहीं, वेरी फ्यू पीपल हैविंग स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम सिंस बर्थ. So if you don't find any words, so you can use English, Hindi language. But as soon as try to come back to English as early as possible. That's what they said. So you should not think about कि मुझे बहुत fluent English बोलनी है, मुझे English ही बोलनी है, ऐसा नहीं. Again, like Hindi is also not a very, not so many people are comfortable in Hindi also. Okay. So it's not about the language, it's about how you communicate. Okay, what are the words that you're using, even in Hindi or in English? What are the words that you're using? What are the actions that you do? मतलब आपके आप you speak and you write a very good English. You write ki that Suresh is a very very brave person and he's intelligent, he's smart, he's very very intellectual and all. वो नहीं मानेंगे. Psychologists will not believe. If you say कि he step forward and move ahead in the dark, so immediately उसके एक्शन से पता चल जाता है कि हाँ, मतलब he move ahead, he step forward, he took the decision, he was leading the team. तो ये जो ये this is a test of your perception. आप जो actions दिखाते हो, आपने कैसे perceive किया है. Okay, so उस चीज को वो दर्शाता है. So you should not bother much about the language. You should focus on your perception and your communication, how you communicate. जितने कम वर्ड्स में आप बोलोगे या लिखोगे स्टोरीज को, लेकिन उसका इम्पैक्ट होना चाहिए. It should be more impactful, thoughtful. Yeah. So one of the prominent questions being asked by interviewing officer about the backup plan. So do we need to have a backup plan? Because sir, if you are very firm about कि हमें फौजी ज्वाइन करना है, तो सर अपनी एनर्जी को प्लान बी पे डाइवर्ट क्यों करना? So I want to know your opinion on this. Yeah, of course. See, I was seeking for a lot of answers. मैं जब SSB की तैयारी कर रहा था, it's a 2.5 years of struggle. I was going everywhere. जहाँ पे भी मौका मिलता था मैं लोगों से बात करता था. मैं अब हमारे टाइम पे उतना भी YouTube या सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था कि we used to come to know the officers. जैसे अभी like I'm really appreciating you and all other different channels जो आप ये SSB के क्लासेस या जो भी ये सेशन चलाते हैं, बिकॉज आर टाइम में ये अवेलेबिलिटी नहीं थी कि हम लोग क्वेश्चंस पूछे जैसे अभी इंस्टा लाइव्स वगैरह होते हैं. तो जितने भी ऑफिसर्स हम मिलते थे एनसीसी के थ्रू, वी यूज्ड टू आस्क देम कि सर कैसे होता है, क्या होता है. बट मैं जब भी कॉन्फ्रेंस होके आता था, कॉन्फ्रेंस में हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि इफ यू डोंट गेट रेकमेंड व्हाट विल यू डू. ओके, अब मेरे इस आंसर से प्रोबेबली नॉट मेनी पीपल विल एग्री टू इट, बट मैंने ये आंसर दिया था मेरे कॉन्फ्रेंस में व्हेन आई गॉट रेकमेंड. हमेशा मुझे भी ये बोला गया था कि यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान, बैकअप प्लान, प्लान ए, प्लान बी, दैट्स द वे आर्मी फंक्शंस, ये वो सब ऐसा वैसे. इवन द असेसर्स फ्रॉम द एसएसबी बोर्ड के जो रिटायर्ड असेसर्स थे, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने भी बताया था कि हाँ यू जस्ट टेल देम मैं एमबीए करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. बट ये सारे आंसर्स दे चुके थे, उनका कोई इफेक्ट नहीं हो पा रहा था. Then I met one of my teacher. She was not part of any SSB. She was a English teacher from a college, and मेरी friend ने उनसे मिलवाया था. She said that कि she was helping all the other students psychological test वगैरह में, and she was a daughter of a army officer. वो काफी old teacher थे हमारे. तो मैं जस्ट उनको मिलने गया था, and I had to explain her कि SSB क्या है, कैसे प्रोसीजर्स होता है. मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा था कि जनरली हमेशा कॉन्फ्रेंस में दे आस्क मी कि इफ यू डोंट गेट रेकमेंड व्हाट विल यू डू. सो शी आस्क्ड मी कि तो फिर आप क्या जवाब देते हो. मैंने कहा मैम हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए. मैं बोलता हूँ उनको मैं एमबीए करूंगा, तो मैं ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, या मैं बीएसएफ जाऊंगा, ऐसे वैसे. शी जस्ट सेड व्हाई डोंट यू से जस्ट लाइक दैट कि you don't plan for failures, you plan for success. That's it. And it just blown up my mind. Yeah, of course. And मतलब see, conference में जब मैं गया, ये question मुझे पूछा कि and it was my last attempt. Last मतलब last attempt. They knew that. Yes, sir. They asked me the same question. If you don't get recommend, what will you do? I just had a smile. सारे conference में everyone was sitting there and just said very firmly
कि सर आई डोंट प्लान फॉर फेलियर्स, आई प्लान फॉर सक्सेस, दैट्स इट. आई कुड सी देयर इज सम हल्का सा एक शॉक लगने के बाद जो एक होता है ना रिएक्शन सारे एसएसएस एंड सारे जो बोर्ड मेंबर्स थे, बिकॉज दे आई एम वेरी श्योर दे नेवर हर्ड सच आंसर्स. इट वाज अ रिस्क कि ऐसे मतलब लोगों को लगेगा कि ये बहुत सारा एरोगेंस है इसमें, जस्ट लाइक मतलब एटीट्यूड मार रहा है जैसे बोलते हैं. But it's not like that. It's a positive mental attitude. That is what SSB is. How you positively, उस सिचुएशन को आप हैंडल करते हो. अब जब आपके दिमाग में फेलियर्स के बाद मैं क्या करूंगा आता है, इसका मतलब आप उस प्लान के ऊपर फोकस नहीं हो. यू आर नॉट पुटिंग एन एफर्ट टू मेक अ प्लान सक्सेसफुल. मतलब आप पहले से ही समझ रहे हो ना कि मैं 8 घंटे स्टडी करूंगा तो मैं सीडीएस क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं क्लियर नहीं हुआ तो मैं दूसरा अटेम्प्ट दे दूंगा. बट व्हाई डोंट यू जस्ट राइट कि 8 घंटे नहीं, जब तक मेरा ये जो टॉपिक है या जो जनरल नॉलेज के जितने भी ये टॉपिक्स है जब तक खत्म नहीं होते मैं सोऊंगा नहीं. आई विल नॉट स्लीप, आई विल नॉट ईट. जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता ये टॉपिक्स, ये किताब जो है या आर एस अग्रवाल जो मैथ्स के लिए पढ़ते हैं, मैंने अरिथमेटिक आज स्टार्ट किया है, जब तक अरिथमेटिक मेरा खत्म नहीं हो जाता मैं मतलब ना तो मुझे नींद आएगी ना तो मुझे खाने पीने का होश रहेगा. ठीक है. सो तब क्या आप सोचोगे कि अगर मैं मैथ्स नहीं क्लियर कर पाऊंगा तो क्या करूंगा, है ना. सो दैट इज द कमिटमेंट यू शुड हैव. यू शुड प्लान फॉर सक्सेस, यू शुड नॉट प्लान फॉर फेलियर्स. Yes. So one of the fear factor in all the aspirant is that कि ड्रॉप ईयर नहीं करना है. 12th के बाद हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हो, सर उन्हें ये फियर फैक्टर रहता है कि ये 1 ईयर का वो एक्सप्लेनेशन मांगेंगे इफ यू डोंट क्लियर इन दैट टाइम. सो सर उस टाइम पे अप्रोच क्या होना चाहिए, कि हमें ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? Okay, it's a very good question, I must say. And you're asking to a very, I'm a person, not only a gap year. I was failed in 11 for twice. मतलब continuously, मतलब 2 बार मैं 11 में फेल हो गया था. And that was question asked to me, मतलब हमेशा हर इंटरव्यू में पूछा गया. उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने गैप लिया था. आई गेस 2 साल का गैप हुआ था मेरा, 1.5 साल का गैप हुआ था. एंड सो यस कि इट्स नॉट अबाउट द गैप पर से. व्हाट दे आर आस्किंग कि आर यू कीपिंग योर सेल्फ एंगेज एवरी टाइम, या आप यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. ओके. एंड अगेन इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ सिचुएशन गिवन टू यू. इट्स अ मतलब आपके ऊपर एक, जैसे आप अचानक से पोस्ट पे बैठे हो और अचानक से आपके ऊपर हमला हो गया, तो आप कैसे हैंडल करोगे उस सिचुएशन को, है ना. आपने बताया कि नहीं सर मैं तो आज ही आया हूं, मेरा इंडक्शन भी नहीं हुआ, मुझे इस एरिया के बारे में पता नहीं, और ये पाकिस्तानियों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया. दिस इज वेरी अनफेयर सर. ऐसा नहीं बोल सकते ना आप. सो आप गैप लो या ना लो, इट डजंट मैटर. आप उस जो भी आप कर रहे हो उसको क्या आप जस्टिफाई कर रहे हो, आप जस्टिफाई कर सकते हो. सी बिकॉज क्या है, वॉट एवर डिसीजन दैट यू टेक, उस डिसीजन को आप जस्टिफाई करोगे आपके आयो के सामने, तो ही इज कन्विंस्ड. ओके. एंड उसमें भी कोई, अगेन इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कुछ आप रहने बाय की एक्टिविटीज कर रहे हो, इट शुड बी सम क्वालिटी शुड बी कम आउट ऑफ इट. मतलब उस जस्टिफिकेशन में भी उस 15 क्वालिटीज में से भी कोई क्वालिटीज हो. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई वॉज वर्किंग सर, क्योंकि घर की हालत ठीक नहीं है, मैं काम कर रहा था, तो इसलिए मैं पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. मतलब पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था, मैं काम कर रहा था. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी. पर घर में तो योर फादर इज वर्किंग वेल, तो तुम क्यों पैसे कमा रहे थे. नहीं सर, आई ओन इट कि ग्रेजुएशन खत्म हो गया, अभी मुझे अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना है. I wanted to take a responsibility of myself. And one important thing is, sir, mindset plays a vital role. And sir, mindset का जो रिलेशन है वो डेली रूटीन से काफी ज्यादा है. तो इस तरह से कौन सी चीजें हम डेली रूटीन में करें ताकि हमारा माइंडसेट इंप्रूव हो सके या बेटर माइंडसेट के साथ हम काम कर सकें? Okay. First of all, don't set your mind. Okay. And see, डेली रूटीन जो होता है, अगेन रूटीन में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो सब हमको कंपल्सिव बना देते हैं. बट अगर आपको एसएसबी को आपको क्लियर करना है, यू शुड बी वेरी कॉन्शियस, बिकॉज जितने भी टेस्ट है वो सारे आपके कॉन्शियस बेस्ड है. मतलब इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ.
जैसे आपने रोज एवरीडे आप उठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड आपको बताया जाता है कि 5 किलोमीटर में आपको 25 मिनट्स में आपको दौड़ना है, एंड यू हैव टू क्लियर द टेस्ट। तो इट्स ओके, आपको डेली रूटीन में आप दौड़ रहे हो, अपने फिजिकल अपनी मसल्स को उतना ग्रूम कर दिया एंड यू क्लियर द टेस्ट। बट वैसा नहीं होता है। ये सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो जीटीओ टास्क होते हैं। अलग अलग कलर कोड दिए जाएंगे, अलग अलग प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क। आपको पता है कि कैसी डिजाइन या कैसा वो टास्क आपके सामने आएगा। उसका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बिकमिंग वेरी कॉन्शियस, अलर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। जो सामने आपके जो टास्क दिया है कि ये व्हाइट कलर है, ये ब्लू कलर कोड है, ये रेड है, अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे, आप अलर्ट नहीं रहोगे, तो आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो रूटीन में, डेली रूटीन जो होता है, डेली रूटीन में आप क्या कर पाओगे ऐसे जो आप एसएसबी को क्लियर कर पाओगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफकोर्स, जो डिसिप्लिन होता है वो डिसिप्लिन तो चाहिए आपको। यू शुड बी फिजिकली फिट, बिकॉज अगर आप हेवी वेट लेके जाओगे तो वैसे भी आप सोच नहीं पाओगे ढंग से। इफ यू आर फिजिकली फिट, तभी आप माइंड आपका अलर्ट रहेगा एंड यू कैन फोकस ऑन द टास्क। बट माइंड शुड नॉट बी सेट। मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या माइंडसेट होना चाहिए, माइंड शुड बी कंप्लीटली ओपन। इट शुड बी ओपन टू रिसीव द टास्क इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके पास आइडियाज आएंगे, काफी सारे आइडियाज आएंगे। कभी कभी लोगों को लगता है ना कि सर वो समझ में नहीं आता है कि क्या सोल्यूशन निकालूं, बिकॉज हम सेट करके जाते हैं माइंड्स को, हम क्लोज करते हुए जाते हैं माइंड्स को, बिकॉज हम किसी माइंडसेट को लेके जाते हैं। तो माइंड को सेट नहीं करना है, माइंड्स को फ्री करना है, ओपन रखना है उसको। बाकी डेली रूटीन में वन थिंग दैट यू शुड ऐड इज द मेडिटेशन दैट यू शुड डू। that's what I recommend. You should do the yoga, because yoga and meditation से क्या होता है, you become more conscious. तो mind becomes completely detached from the circumstances जितने भी है। तो अगर आप किसी भी जीटीओ टास्क में हो या साइकोलॉजिकल टास्क में हो, आपको अपने आप वो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। It happens. So I'm done with all the questions. और मुझे लगता है सारी बहुत important questions थे, and people might consider कि इन सारे questions उनको काफी help होने वाली है। Thank you so much for joining me for this interview, sir. It was a lovely talking to you. I really got to know a lot of insight about NSG according to your training days and what kind of mindset you require when you go to Forge. Thank you so much for joining me. Thanks, Sheetal, and I really enjoyed these conversations, and I really hope that all the aspirants will, somehow I just help them to clear their SSBs and written test, CDS and NDA, and I wish कि आपके जो भी aspirants हो, when they recommend, they should, you should just send me the message. It will be the most joyful moment for me, and thank you so much for this opportunity. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.